Hello everyone, I am Professor Amit Vyas, Computer IT Department from Dr. Subhash Technical Campus. Today we are discuss about the topic of backtracking. So we can show what is the backtracking and what is the real-time use of the backtracking. We can show that the principal idea of backtracking is to construct the solution as component at a time and then evolute such the partially constructed solution. So this is the backtracking. So backtracking mostly used in the real-time situation. We can show that. So what is the backtracking? We can show one animation. If you start one position, then you have choose if you go this direction and this direction. Then otherwise, then after this point, you have go for other direction, and similarly you can return it. So here also you can choose a different direction. You can choose that, and finally you can return that. So this is the concept of backtracking, and finally you have some success for any one point. So what is the backtracking? If you start any one point and then after you have choose a number of option which path you have follow, and one path is follow for particular answer for the any question or any game solution. So mostly key points use some state and space tree, root components, promising and non-promising, and leaves. This is the main key concept. So we can show the backtracking for the n-queen problem. So this is the importance of the n-queen problems. So what is the problems? We can show that. This is the n-queen problems for 4x4. We can show another also. So what is the concept of n-queen problem? The concept is, if you use for the queue for 4x4 and problem, if you put any queue, then the condition is, then after remaining queue is do not put near about row, column or diagonal. So you have do not use this row, it means this row and column and this column and this diagonal. So this is the condition. The condition is, we can show that here also. So what is the condition? The problems of place n queue on n by n chessboard, number of two queen attack to each other by in the same row, same column and same diagonal. It means the two queue is do not intersect between same row, same column and diagonal. So this is the concept of n queen problem. आपको क्या करना है और कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ फिर से रिपीट करके. द कंडीशन इज, आपको क्यू पुट करना है लेकिन वो सेम रो में नहीं आना चाहिए, सेम कॉलम में नहीं आना चाहिए और सेम डायगोनल. तो आपको इस रो में नहीं आना चाहिए. आप क्यू कहाँ पर भी पुट कर सकते हो लेकिन वो सिर्फ रो में एक बार. और दूसरी कंडीशन है कि वो कॉलम में आप कोई दूसरी क्यू पुट नहीं कर सकते. और तीसरी कंडीशन है कि उसके डायगोनल में आप कुछ नहीं पुट कर सकते. तो यहाँ है तो यहाँ पुट नहीं कर सकते, यहाँ. तो दिस इज द कंडीशन. इस तरह से आपको 4x4 क्यू है तो इसका मतलब आपको 4 क्यू यूज करनी है और इस चेस बोर्ड में इस तरह से पुटअप करनी है जैसे कोई भी क्यू एक दूसरे से साथ इंटरसेक्ट ना हो. सो दिस इज द आंसर ऑफ 4x4 n queen problem. This is the one answer or this is the second answer of 4 queen problem. तो 4x4 क्वीन प्रॉब्लम में आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे.
एक ये आप देख रहे हो और दूसरा ये। सो हाउ कैन यू सोल्व this 4x4 problem? We can solve that. So we can start backtracking demo for 4 queen problem. आपने देखा होगा कि बैकट्रैकिंग में आंसर कैसे आता है। तो अब हम रियल टाइम में इसे चेक करेंगे कि आपको कैसे चेक करना है ईच एंड एवरी पोजीशन में कि कोई भी क्यू एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना हो। तो फर्स्ट कंडीशन, आपको मैं कंडीशन फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर यहाँ पे क्यू है तो दूसरे क्यू आप यहाँ पुट नहीं कर सकते, यहाँ पुट नहीं कर सकते और डायगोनल में पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब आप रो में कुछ पुट नहीं कर सकते, कॉलम में और डायगोनल में। इस तरह से आपको 4Q का यूज करना है और इस चेस बोर्ड में उसके पॉसिबल सॉल्यूशन को फाइंड करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी कैन पुट हियर, you can check that this is the backtracking for the end queen problem. Then next you have checked you have put here also, but this is the not possible because of the condition. Then you can put in the next is here also, then it is not possible because of the condition is satisfied. तो आपको डायगोनल में पुट नहीं करना है, रो और कॉलम में पुट नहीं करना है। उसके बाद आप कहाँ पुट करोगे? देन वी कैन शो दैट। तो आप यहाँ पुट करिए। आपने देखा कि मैंने यहाँ पुट किया और उसके बाद देख करते हैं। आपको 4x4 है, इसका मतलब 4 क्वीन का यूज करना है इस पूरे चेस बोर्ड में और देखते हैं कैसे होता है। उसके बाद आपने यहाँ पुट किया तो उसके बाद आप देखते हैं। इसके बाद आप कहाँ पुट करोगे? एक क्यू आपने यहाँ पुट किया, सोचा कि यहाँ पुट करते हैं तो ये नहीं चलेगा क्योंकि सेम रो है। आपने यहाँ पुट किया, नहीं चलेगा क्योंकि ये यहाँ पे डायगोनल होता है। आपने यहाँ पुट किया, नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो आपने सोचा कि ये यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। आपने यहाँ पुट किया तो दिस इज द नॉट पॉसिबल। आपको 4x4 कंडीशन चेक करनी है। आपने यहाँ पुट किया, चलो 3 हो गए। अब एक पुट करना है। आप कैसे पुट करोगे और किस तरह से देखते हैं। आपने यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे भी नहीं चलेगा, यहाँ पुट करिए, यहाँ पे भी नहीं चलेगा। इसका मतलब कि ये आपने जो पुट किया हुआ है वो गलत है। तो आप चेंज करोगे, आप यहाँ से यहाँ लेके आओगे, लेकिन दिस इज द नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप नीचे लेके आओगे, वहां भी इंटरसेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों में से कुछ प्रॉब्लम है। तो आप फिर से स्टार्ट करोगे, ये क्वी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे। उसके बाद चेक करोगे, यहाँ पे दूसरी क्वी एन क्वीन में से एक पुट करते हैं। दिस इज द नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पॉसिबल है तो आप यहाँ पुट करोगे। उसके बाद आप दूसरी एक यहाँ पुट करोगे। यहाँ पे आप 4th क्वीन पुट करोगे, लेकिन दिस इज द नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे आप चेक करोगे, दिस इज द नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप पुट करोगे। आपने देखा होगा यहाँ से आपने यहाँ पुट की, तो ये एक सॉल्यूशन है, वो कंप्लीट आ गया। 4x4 क्वीन में से एक सॉल्यूशन ये है कि आप इस तरह से पुट करोगे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दिस इज द नथिंग बट द 4 क्वीन प्रॉब्लम्स। सो वी कैन शो द 4 क्वीन प्रॉब्लम्स। We also check the 8 queen problems. So what is the possible solution of the 8 queen problem? आप देख सकोगे, this is the 8 queen problems. आपने देखा होगा कि 4x4 क्वीन में कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन है, वो आपने देखे होंगे। और इसमें क्या है, ये 8 क्वीन प्रॉब्लम है, तो 8 क्वीन में कितने सॉल्यूशन आएंगे? 4 सॉल्यूशन आएंगे।
So this is the possible solution of the n queen problems. तो n queen problems का यूज कहाँ पे होता है वो भी आपको देखना होगा. तो this is the n queen problems. You can solve that, and also you can check that this is the 8 cross 8 n queen problem. तो आप इसकी पॉसिबिलिटी भी चेक कर सकते हो. ये यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हुई है. तो आप में कंडीशन आपको पता है कि कोई भी रो कॉलम और डायगोनल में कोई क्वीन पुट नहीं करनी है, और इस तरह से आपको इस चेस बोर्ड में वैल्यू पुट अप करनी है. आप देख सकोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ये 8 क्रॉस है, 8 क्वीन प्रॉब्लम है, तो इसमें 8 क्वीन का यूज दिया हुआ है. सो वी कैन सो दैट द नेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ द n queen problem. So the application of n queen problem, this is the gaming में इसका यूज होता है. most the application of n queen problem mostly used in gaming और puzzle solve. आपने देखे होगी कैसे पजल को सोल्व आउट किया जाता है, उसमें n queen का मोस्टली यूज होता है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है. नोड कनेक्शन की कनेक्टिविटी में कितना नोड आप कंप्यूटर नेटवर्क में आप देख सकोगे क्या नोड किसे कहते हैं, तो वहाँ से आप कितना डिस्टेंस में कितनी नोड एक्यूरेट आएगी, उसी तरह से n क्वीन प्रॉब्लम सोल्व आउट यूज होता है. So this is the importance of the n queen problems. So we can show that what is the this is the 8 cross 8 n queen problem. तो आपको एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आएंगे. यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द n क्वीन प्रॉब्लम और व्हाट इज द बैक ट्रैकिंग. बैक ट्रैकिंग क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा. उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना होगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ n क्वीन प्रॉब्लम. तो n क्वीन प्रॉब्लम की कंडीशन आपको पता है, वो आपको लिखनी होगी. उसके बाद क्वेश्चन दिया होगा 4 क्रॉस 4 और 8 क्रॉस 8. अगर दोनों में से कोई भी दिया होगा, अदरवाइज कोई भी नहीं, n क्रॉस n दिया होगा तो आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो 4 और 8. लेकिन अगर स्पेसिफाई किया होगा तो आपको वही एक्सप्लेन करना है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 8 cross 8 n queen problem. This is the 4 possible solution. So we can show that what is the backtracking. So we can show the starting the principal idea of backtracking is construct the solution as a component at a time and evaluate particularly constructed solution. तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकोगे कि कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसे कि आप गेम में करते हो, वहां से आपके पास लूडो आपने देखा होगा कि आप इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो और वापस से वहीं आते हो, और इसी तरह से आपकी गेम कंप्लीट होती है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैक ट्रैकिंग एंड एनिमेशन गेमिंग. तो गेमिंग में बहुत ज़्यादा बैक ट्रैकिंग यूज होता है. और फाइनली आपको जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं वो आपको सभी पॉसिबल सॉल्यूशन चेक करने होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि 4 क्रॉस 4 ये सॉल्यूशन है. तो इसमें से आपको एक पॉइंट के लिए आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए भी काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिलेंगे. तो आप कोई भी सॉल्यूशन चूज कर सकते हो, वो इफेक्टिव होना चाहिए. So this is the importance of the backtracking. So this is the one condition. You can show that what is the n queen problem. You can show the 4 case. If you n cross n, you can use 4 cross 4 problem. The problems. This is the condition. So what is the condition? आपको पता है. मैं condition repeat करता हूँ यहाँ से कि आप कोई भी वैल्यू सेम रो सेम कॉलम और डायगोनल में पुट नहीं कर सकते. दिस इज द वन कंडीशन कि आप दूसरी वैल्यू को है और सेम रो, इसका मतलब यहाँ से आप इस तरह से पुट नहीं कर सकते, सेम कॉलम और डायगोनल, इसे डायगोनल कहते हैं, तो आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते.
सो दिस इज द 4x4 प्रॉब्लम और इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन है, एक इस तरह से और दूसरा आपने देखा होगा इस तरह से। सो दिस इज द पॉसिबल टू सॉल्यूशन ऑफ द एन क्वीन प्रॉब्लम। आपको दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो इजीली आप देख सकोगे। और आप ये 4x4 प्रॉब्लम के लिए आपने जो देखा हुआ है कि आप कैसे पॉसिबल सॉल्यूशन चेक करोगे, वो आपको पता है कि यहाँ से आप चेक करोगे, यहाँ पुट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पुट कीजिए, यहाँ भी पुट नहीं कर सकते तो यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पुट नहीं कर सकते तो और दूसरा आप यहाँ पुट कीजिए। तो इस तरह से आपको हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन चेक करना होगा और आपको एक फाइनली आंसर मिलेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द 4x4 प्रॉब्लम। व्हाट इज द यूज ऑफ द बैक ट्रैकिंग? बैक ट्रैकिंग का मोस्टली यूज होता है गेमिंग में, तो आप कैसे रिवर्स और फॉरवर्ड और आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।